Session of the delegate session. Hello. The subject is talk on All India Bank of Baroda Officer Association by our worthy President Shri R.K. Chatterjee Dada will carry on the business session. I request Chatterjee Dada to take charge of the session. दादा वो क्या के लिए सुना ना सुनना नहीं है सर तो? बोलना है ओ कॉलर है वो आपको तो कॉलर में तो खाली यही कहाँ लगता है, ये वाला तो लगता नहीं है। इतना रेस्ट्रिक्शन में बात करने का नाम। सुनाई देगा ना? डाउट होता हमको, बोलिए। So, very good afternoon to all of you. Our beloved General Secretary, Dr. Lalita Makkar, Madam, all Prabhuji, all General Secretaries and delegates from various zones. तो अगर कोई सोच के बैठी हो कि आई अलाउ टू स्लीप, आई विल नॉट अलाउ यू टू स्लीप। माय डिटर्मिनेशन इज वेरी स्ट्रांग। I have been given a very topic that sky is the limit. I have to speak about all about AIBOVA. You see, you know it. What is AIBOVA? Most of you know very well. And you are representing from different zones of our country, including BCC and head office, Gift City. All are there. I don't know how many of your committee members. We have 3 tiers. Zonal committee, central committee, regional committee. Wow, very good number. So when I proposed in the morning session, 33% can be reserved. How many of you are coming forward? My test is that. So whosoever is willing to come to join the committee, please give your names to respective zonal secretaries of your zone. Don't give to name to other zones, otherwise it will be interzonal transferred. You carry the risk. So, in the post-lunch session, I was just standing and some of the only query is regarding transfers. Interzonal transfer. I have come to this one, I'll go back. You have come, you'll go back. This is the assurance of the association. When you'll go back, once the management will issue the order, you'll go back. Present policy is very clear that association has been able to get it for every 3 years for the female officers. That much rest assured, and we are going to very shortly to have the policy because the previous one is going to end on 31st of December 2020. The earlier policy dated BCC 112 786 31st December 2020. Now, when we talk of our association, how we are conducting our activities, those who are committee members, they must be knowing in what way we are conducting. That is, the structured meeting is one formal setup we have that is only available to All India Bank of Baroda Officer Association because we are recognized association. No other officer association has got this privilege to have a interaction on formal basis with the management. Leave aside, informal is only available to us also. You have seen the access of AIBOBA to the management. The Honorable ED came on our request and he was interacting. Structured meeting, those who have the idea that we are giving agenda to the management, and in that agenda it is scheduled for having meetings at 6 monthly interval, whether it is the regional level, zonal level or corporate level. 6
monthly interval meetings are there. You give the agenda, they are discussing the agenda, it is minutized, and minutes are given back to us. Now it all depends on the effectiveness of the leadership, in what best way we give our agenda to the management for solution. What should I say? The individual issues are only, I will speak mostly on deficiencies. Individual issues are coming less. Why? These are the questions to the members. Why you are feeling shy in referring your cases to the association? Why? This is all why are there. You are willing to speak to your general secretary, you are giving the cases to the general secretary, come back to the issue, giving in writing, you are feeling shy. काम होना चाहिए, नाम नहीं आना चाहिए. हाँ, कैसे होगा? और हम बोलते हैं कि काम भी होगा, नाम भी आएगा. बिना नाम के क्या बात करेंगे मैनेजमेंट से? व्हाट शुड आई डिस्कस विद द मैनेजमेंट? इफ आई गो टू द मैनेजमेंट XYZ, किसका है? व्हाट इज द EC नंबर? वेयर ही और शी इज पोस्टेड? क्लियर कट. स्ट्रक्चर्ड मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एसोसिएशन के लिए. इसीलिए आप लोग जब भी जनरल सेक्रेटरी हमारा एजेंडा सिक करता है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द एजेंडा. मस्ट गिव द एजेंडा, गिव योर नेम्स, गिव योर इशूज एंड बी क्लियर अबाउट इट कि मेरा ये इशू है, हमारा ये प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम्स आर देयर बट यू डोंट, वो नजर में नहीं चढ़ना चाहते हैं. RM शुड नॉट नो योर नेम. लीव असाइड, RM तो बहुत बड़ा साहब हो गया आजकल, सुनते हैं. वो HR वाला बड़ा साहब हो गया आप लोग के लिए. हाँ, HR वाला कब से साहब हो गया? जैसे आप लोग बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, रीजनल ऑफिस, लाइक दैट दे आर ओनली मेंट फॉर इट. लेकिन आप लोग के लिए बड़ा साहब हो गया, कहा कि वो आपका सुनता है. कहीं कहीं जनरल सेक्रेटरी नहीं सुनता है, HR वाला सुनता है. ये सब भी रिपोर्ट आता है हम लोग के पास. बात कीजिए, ऑथोरिटी हमारा रीजनल मैनेजर है. HR हैज नो ऑथोरिटी. काम कौन करेगा? रीजनल मैनेजर करेगा. इवन DRM भी नहीं करेगा. आजकल जो है ना, सूडो लीडर्स बहुत इमर्ज कर गया मैनेजमेंट में. एसोसिएशन जैसे जैसे इनइफेक्टिव होता है तो सूडो लीडर्स इमर्ज करता है. ये इमरजेंस होता है इस तरह का. यू रेस्पेक्ट योर जनरल सेक्रेटरी, रीजनल सेक्रेटरी एंड टू द रीजनल मैनेजर. दिस आर द ऑथोरिटीज. अननेसेसरी दूसरे के जाइएगा, यू विल डेविएट द इशू, यू विल डाइल्यूट द इशू, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट. बी क्लियर अबाउट इट. जब आज से 3 साल 4 साल बाद वापस जाइए, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ यू हैड बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, बिकॉज अभी तो 3-4 साल से रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं, इसलिए कोई नए नहीं आप. आज से 4 साल पहले एसोसिएशन है क्या? जनरल सेक्रेटरी है क्या? कोई तो दिखता नहीं है, कोई कुछ सुनता नहीं है, कोई कुछ बताता नहीं है. आओ आप बोलो, आर वी नॉट विजिबल? आर वी नॉट एक्सेसिबल? आर वी नॉट कम्युनिकेटिव? सबका जवाब चाहिए. अनआंसर्ड नहीं रहना चाहिए कोई चीज. कि जो एसोसिएशन ने प्रयास लिया, आज ये जो आपका कॉन्फ्रेंस हो रहा है, फीमेल ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस, ऑफिसर्स के मूवमेंट में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है ये. जब 60 साल का हमारा एसोसिएशन फर्स्ट टाइम कर रहा है इस तरह का. हमने किया, डिफरेंट नेम से किया, यूथ कॉन्फ्रेंस किया, वी हैव, आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, अपने सेंट्रल कमेटी पार्टिसिपेट किया, जनरल कॉन्फ्रेंस में आप आए होंगे. बट हैविंग एक्सक्लूसिव सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर द फीमेल ऑफिसर्स, व्हाई वी हैव इट? क्यों करना पड़ा? क्या जरूरत पड़ा? आपको तो बढ़वा है, चले जाइएगा, फोटो सेशन हो गया जनरल सेक्रेटरी के साथ, उससे हमारा पर्पस सर्व नहीं होता है. लेकिन जब आप आए यहाँ, तो यहाँ से आपने आज सुना, प्री लंच सेशन में सभी को सुना आपने, और आपने देखा भी क्या एसोसिएशन है, एसोसिएशन कैसे काम करती है. तो जो मेरा पर्पस था कि हम विजिबल बने, हम एक्सेसिबल बने, और सभी जगह, अगर आज भी डिफरेंट जोन से आप आए हैं, हालांकि आप में से इसमें तो किसी को शिकायत नहीं होगा कि मोस्ट ऑफ यू हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय योर जनरल सेक्रेटरी, सो यू नो योर जनरल सेक्रेटरी.
This problem may not be there here, I know it. Other than that, जोन में जिस रीजन में आप फंक्शनिंग है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन करो अपने आप को, whether you're in the region, whether your regional secretary is there or not, are they functioning or not, are you aware of the structured meeting or not in the regions? Because AIBO को ये right है to have the structured meeting. और अगर नहीं हो रहा है तो report to your general secretary कि हमारे region में कोई meeting नहीं हुआ है. जो दूसरा हमारा ये रहता है, सबसे बड़ा टू लाइफलाइन होता है एसोसिएशन का. एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग होता है, दूसरा होता है हमारा जनरल बॉडी मीटिंग. जनरल बॉडी मीटिंग जैसे हम हैं, पक्कड़ साहब हैं, तो पूरे पिछले 3 साल से पूरा भारत भ्रमण में ही है. जहां जाइएगा हमें पाइएगा वाला स्थिति हो गया अभी. तो ये जनरल बॉडी मीटिंग क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? व्हाई? हम इस पर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों आते हैं लोगों के सामने में? व्हाट वाज द नेसेसिटी टू इंप्रेस अपॉन ऑनरेबल ईडी दैट वी वांट फिजिकल ट्रेनिंग? There is a need of interaction. There is a need of interaction. Online, you cannot give your impression the way you want to influence your audience. You can't. You can never do that. नहीं हो सकता है. Simply नहीं हो सकता है. और जब भी जनरल बॉडी करते हैं तो इनवेरिएबली हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं. एंड इट्स अ फ्री सेशन कि कोई भी मेंबर हमारा सवाल कर सकता है और उसको जवाब दिया जाता है. वी आर आंसरेबल टू द पीपल. वी आर आंसरेबल टू आवर पीपल. अभी रिसेंट पास्ट में जो फाउंडेशन डे तो हर जगह मनाया गया. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि 60th डायमंड जुबली फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन वाज थ्रू आउट द कंट्री. अगर किसी के रीजन में नहीं हुआ वो भी शिकायत दर्ज कर सकता है कि जोनल सेक्रेटरीज आर डायरेक्टेड टू हैव इट इन ऑल द रीजनल हेडक्वार्टर. दिस वाज द डायरेक्शन टू देम कि आप हर रीजन में कंडक्ट करो. पीपल शुड नो एन एसोसिएशन which is the oldest of the association is celebrating its diamond jubilee. It's a matter of lot of pride for us. Always have that belongingness to the organization. We belong to the organization which has 60 years old. और हम जो 60 years old हैं तो हमने कंडक्ट किया, डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया, and your this conference is also part of that diamond jubilee. General body General Secretary is empowered to call. General Secretaries are holding general body at the regional headquarter, may or may not be holding, both the things are there. जब structured meeting, after taking over, we went deep into it. कि ये visibility क्यों नहीं है, interaction क्यों नहीं है, member को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये हमारा association है. Why? Member को समझ में आना चाहिए ना, that is their association. They should own it up. नहीं ओन अप करता है, क्यों नहीं करता है? तो सवाल ये उठता है कि फर्स्ट है ये किसका एसोसिएशन है? आपका एसोसिएशन है? कोई डिनाई करते हो इसमें से? जो ऑलमोस्ट 200 डेलीगेट्स आर सिटिंग हियर, लेट एनीवन डिनाई दैट नो इट इज नॉट माय एसोसिएशन. एसोसिएशन किसके लिए काम करता है? आपके लिए काम करता है या दूसरे के लिए काम करता है? और एसोसिएशन अगर मजबूत होगा तो किसको फायदा होगा? और एसोसिएशन अगर कमजोर होगा तो किसको घाटा होगा? ये दिमाग में आता है कि नहीं ये बात आप लोग? जनरल सेक्रेटरी मीटिंग बुलाएंगे, दादा कितना बार बुलाए हैं, दादा इतना बोलते रहते हैं, नहीं आती है. कितना बताए थे फिगर? 42,000 में 11,000 महिला अधिकारी. उसमें से करीब करीब जो क्वालिफाई करता अपना मेंबरशिप ऑलमोस्ट 10,000. मेंबर कितना है एसोसिएशन के पास? सिर्फ 4,000. क्यों? वाई ओनली 4,000? यही सवाल करने के लिए आप लोग को बिठाया हमने. ये 4,000 से 8,000 कैसे होगा बिना आपके सहयोग के? महिला अधिकारी को अगर हमारा जनरल सेक्रेटरी ज्यादा परसू करेगा तो नाराज हो जाएगी. अरे ये जनरल सेक्रेटरी पीछे पड़ा हुआ हमको मेंबर बनाने के लिए. आप लोग पीछे पड़ो. और सभी जनरल सेक्रेटरी हमारे बैठे हुए हैं. दे मस्ट बी लिसनिंग टू मी एंड व्हाट आई रिक्वेस्ट दैट व्हेरेवर द डेफिशिएंसी, द गैप बिटवीन योर number of lady officers in the zone,
you have and how many there are not members, so please provide list to your delegates. That is their job role. They must approach. We want to strengthen the organization at the grassroots. If the association has to function, it cannot function like that the top leaders will be active and rest the grassroots will be inactive. It cannot be. No organization can run without the active involvement of its members. These are fundamental rules. Be it any trade union, it cannot function without the active involvement. Well, without your participation, it cannot function, simply cannot function. तो जब तक आप आगे नहीं आइएगा, until you come forward, we cannot work the way we desire. हमारा भी कुछ मिशन है काम करने का. तो आपने देखा आज, he was passionate in his speaking, he was giving all his thinking about the bank and all that. So the moment he came and I said, sir, you are online, the entire country was watching you. अरे ऐसा था कि हमको तो बताया नहीं आपने. बताने का क्या है सर, नेता का बताएगा कि कहाँ क्या हो रहा है. आप सर ईडी हैं, आप बोल रहे थे, पूरे लोग सुन रहे थे. मैसेज गया ना, बैंक क्या मैसेज चाहती है. आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम. It could have that sort of strength that ED has spoken about, that issue which nobody was touching from the management. Not a single person has come out after the happening, what has happened in the Bob world. एक स्टेटमेंट आया क्या किसी का? सिर्फ संभालने वाला स्टेटमेंट आया. और आज he has made it elaborately clear to you what is the concern. और आज के बाद भी अगर आपने रीजनल मैनेजर का बात आप सुनते हैं गलत काम करने के लिए, तो हु कैन बी ब्लेम फॉर इट? आज के बाद भी अगर आप अपने रीजनल मैनेजर का बात सुनते हैं फॉर डूइंग अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, देन हु शुड बी ब्लेम? ये अपने आप को सवाल करो. ईडी से ऊपर तो नहीं होता ना आपका रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर. नोबडी इज एवर ईडी. इट इज द टॉप पर्सन. और टॉप पर्सन आपको क्या स्टेटमेंट दे के गया, आपने बहुत अच्छा से, यू हैव लिसन टू हिम वेरी अटेंटिवली. देयर इज नो गैप बिटवीन हिज कम्युनिकेशन एंड योर अंडरस्टैंडिंग द इशू. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमको करना क्या है. बॉब वर्ल्ड में 3 एस्पेक्ट था. वन वाज द रोल ऑफ द मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट क्या वांट कर रही थी और मैनेजमेंट उसको प्रोसेस में किस तरह वो विशिएट हो गया. हमको जो नहीं करना चाहिए था हम कर रहे थे, हमने किया. और दैट पॉइंट ही वाज रजिस्टरिंग की, वो उसको इंसिस्ट कर रहा था कि आपको क्यों किया आपने व्हिसल क्यों नहीं ब्लो किया. और व्हिसल ब्लो करने के लिए कलेजा में दम होना चाहिए ना. ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो व्हिसल कैसे ब्लो होगा? उसके लिए तो प्राणायाम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा अपना ब्रीदिंग कैपेसिटी. तो बढ़ाइए. ये बड़ौदा में ट्रांसफर हुआ, जोनल हेड ट्रांसफर हुआ, रीजनल हेड ट्रांसफर हुआ, ब्रांच हेड ट्रांसफर हुआ, और 6 से 7 अधिकारी को हमारा एक्सप्लेनेटरी नोट मिला. ये फैक्ट है. We have prepared the reply, we have given the reply, management is yet to react, our general secretary will take care. In case of need, we are always there. इशू है क्या कि मैनेजमेंट आज के डेट में जो रोल प्ले कराई वो अधिकतर रोल बिना एविडेंसेस के कराती है, वर्बली, मोस्ट ऑफ द रोल. और आप जो करते हो दैट इज रिकॉर्डेड. आप वाउचर पास करते हो, आप ऑथराइज करते हो, आप एंट्री बनाते हो, सारा चीज वो रिकॉर्ड हो रहा है. मैनेजमेंट को सटीक रिप्लाई दिया गया है. वी हैव गिवन द वेरी appropriate reply to the management कि ये जो आपने लीड दिया हमको कि आपके यहाँ इतना फोन में अकाउंट में कोई मोबाइल नंबर नहीं है. सो यू कैन सीड मोबाइल नंबर इन दोज अकाउंट्स वेयर देयर इज नो मोबाइल नंबर. ये लीड है ना, दिस इज लीड. आपने टीम क्रिएट किया, कैप्टन, वाइस कैप्टन, ओपनिंग बैट्समैन, ओपनिंग ब्लोअर किया. ये रिकॉर्ड में है एंड यू हैव एडवाइज्ड आल्सो. और एक तो जो हम बोलते रहते हैं बराबर कि दे आर मोर मॉनिटर्स देन परफॉर्मर्स.
रीजनल ऑफिस में तो भर गया आजकल, मॉनिटर ही मॉनिटर है सब, ब्रांच में परफॉर्मर मिलता नहीं है और रीजनल ऑफिस में परफॉर्म भर गया है पूरा। सिर्फ मॉनिटर करे तो भी चलेगा, वो एक और रोल एज्यूम कर लिया है, वो एडिशनल रोल जो वो दिखना नहीं चाहता, इनफॉर्मर है कि नहीं। सर वो ब्रांच गया था ना, वो मैडम जी थे सर, वो दिखाई दी वहां पर, उस चौक पर दिखाई दी। कितना बज रहा था उसमें, तो मुश्किल से 5 बजा होगा सर, कैसे निकल गए इतना जल्दी। ओरिजिनल मैनेजर नहीं पूछा उसको, अपना पोजीशन सिक्योर करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इन दैट ऑफिस इज इन्फॉर्मिंग लाइक दैट, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ आवर कलीग्स। ये डिजेनरेशन आया है, तो यू हैव टू बी अलर्ट विद सच कलीग्स, दोज हु आर लुकिंग लाइक फ्रेंड्स बिहेविंग लाइक एनिमी। दे आर फ्रेंडली टू यू बट नॉट, ऑलवेज बी केयरफुल। आपको लगता है कि अरे हमारा तो जान पहचान वाला उधर बैठा हुआ है रीजनल ऑफिस में, वो कितना आपको मदद कर रहा है, ये है उसका कैरेक्टर। He or she has to save her position and she can pass on any kind of information which is going to damage you. Be clear. पूरे प्रोसेस में बॉब वर्ल्ड में कुछ लॉस हुआ क्या, फाइनेंशियल लॉस? कोई लॉस नहीं हुआ। बॉब वर्ल्ड में क्या लॉस हुआ? रेपुटेशनल लॉस, बिग रेपुटेशनल लॉस। As he was telling that they were embraced by the stakeholders. That's a fact. RBI didn't spare. Equally, the board of directors के other जो members हैं board में, they are equally harsh on them. आपने क्यों किया? ये सिर्फ आपका एक जोन का बात नहीं है, पूरे कंट्री का बात है। ये उसको पता है कि आप कितना भी कह लो कि आई एम कन्फाइनिंग इनटू वन जोन, वो नहीं मानने वाला है। उसको पता है कि पूरे कंट्री में हो रहा है। तो ये जो एक डिबेट की बात है, ये थॉट प्रोवोकिंग चीज है कि आप ये अनइथिकल प्रैक्टिस से कब तक बिजनेस करना चाहते हो, एंड शुड वी डू इट। ये अपने आप को सवाल करो। हम लोग इंडल्ज हो गए हैं, वेदर वी विश इट और नॉट, बट समहाउ इनएडवर्टेंटली वी हैव बिकम ए पार्टी टू इट। हम लोग हो गए हैं इस कंपटीशन में, जो अनहेल्दी कंपटीशन में जंप करके वी हैव बिकम ए पार्टी। बहुत कुछ बोला जा सकता है ना। ये बीच में आपने देखा, लास्ट मार्च क्वार्टर में देखा, अभी भी देखा होगा, 25,000 से नीचे का सेविंग बैंक नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। अब क्या करेगी मम्मी, तुम्हारे अकाउंट में पैसा है, डेबिट करते हैं। पापा आपसे 25,000 लेते हैं, कल दे देंगे। कल कैसे दोगे? इसको बंद करो, ट्रांसफर कर दो। हाँ, ये बैंकिंग, he was making a very good sentence because his entire record is there with us. Now he was making a statement, इस तरह का बैंकिंग नहीं चाहिए। I don't want number of accounts. I want quality accounts, means that ऐसा अकाउंट जिसमें बिजनेस हो, पैसा है, and money should stay, money should be there. That is banking. Not, this is not the banking कि you are increasing the number of accounts and the accounts are closed. और इस प्रोसेस में करते करते का हम लोग चले गए हैं अनइथिकल बैंकिंग प्रैक्टिसेस में। अभी सब कुछ आप लोग देख रहे होंगे, हमसे तो ज्यादा आपको अभी ऑपरेशन में, यू आर देयर, यू आर वर्किंग इन द ब्रांचेस, रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन भी कहिए। हु इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ब्रांच मैनेजर? वेदर द स्टाफ। आप लोग एकदम चुपचाप सुन रहे हो, जवाब दो ना। हु इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर ब्रांच मैनेजर? द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट or the business correspondent in rural semi-urban branches? Who is running the branch? Your branch manager or they? You yourself can understand sitting in that situation. This is not a happy situation at all. If a branch manager is totally dependent on a DSA and business correspondent for getting the business, means the business can never be healthy. That bugger is having his own vested interest to grow the business. Whosoever is working as business correspondent, direct selling agent, he has got his own interest. He or she is least interested in your bank's business development true sense. Lekin what has happened over a period of time? We have abdicated our role. What role we were supposed to play as an officer, as a branch manager,
to have direct relationship with the customers, that is declining. वो डिक्लाइन कर रहा है. उसके जगह क्या सीख लिया हमने? कॉमन मैन ट्रेजडी कहते हैं उसको. कॉमन मैन ट्रेजडी क्या है? ट्रेजडी, आई विल नॉट स्पीक until I am affected. ईश्वर ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट अंग दिया हम लोग को. 3 अपॉइंटेड एडवांटेजेस हैज बीन गिवन टू अस. ऑलमाइटी हैज गिवन ना. कान दिया हमको, आंख दिया, मुंह दिया, तीनों चीज दिया हमको. देखो कितना आजकल आप लोग ना कुछ देखना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ बोलना है. और उसके बाद ही से हम लोग इजाद किया कि गांधी जी का 14 बंदर भी आ गया. वो सिर्फ बुरा करना है. न देख बुरा, न बोल बुरा, न सोच बुरा, लेकिन कर बुरा. ये कौन सा बात हो गया? तो इतना अधिक साइलेंस होता जा रहा है. यू आर अ बैंक ऑफिसर, माइंड इट. You have been observing many things in your branches. I can, with last matter be just now, even at the dining table, the way he was uttering, कि आपके ब्रांच में ऐसा हो रहा है, and the officer is telling, I do not know. Who is going to believe you? Who is going to believe you? When you come to know, when your password has been misused, and when you get a letter, कि through your password, this account has been debited, and you have to answer that. Once your password is misused, means that you are answerable to that. You are answerable to that. तो इतना चुप्पी साधने का ये बहुत दिक्कत है. ये बीमारी हो गया कि हम will not express our dissent. हम योगदान भी नहीं देंगे, हम असहमति भी नहीं चाहेंगे. And this generation don't mind. You believe in blaming the system, but who will correct the system? Somebody else will come to improve our system. Or I am observing that due to my silence, system is deteriorating day by day, and there is no protest from my side. Why? My question is that. क्यों प्रोटेस्ट नहीं है? Why that urge doesn't come in me? I am working in this institution. हमारे ब्रांच में XYZ is damaging my institution, and I am not opening my mouth. I am not communicating to my regional head. I am not communicating to my deputy regional head. I am not communicating to my association. Why? This is my question. क्यों ऐसा फीलिंग नहीं होता आपको कि हमको पूछना चाहिए, हमको बताना चाहिए कि आपका इंस्टीट्यूशन नहीं है क्या? इंडिफरेंस का तो हाइट हो गया है. अभी आप लोग 2 अधिकारी एक ब्रांच में हैं, एक नहीं आ रही है, तो मैनेजर क्या करेगा? वो नहीं आ रही है, सर हमको तो जानकारी नहीं है. अदरवाइज दे अपीयर टू बी वेरी गुड फ्रेंड्स. उनको जानकारी नहीं है, और मैनेजर विल रिपोर्ट टू HRM कि सर वो सच एंड सच इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस मेनी डेज. उधर से इंस्ट्रक्शन है, पुट हर ऑन लॉस ऑफ पे विदाउट नोइंग वो उसकी मम्मी बीमार है कि वो खुद बीमार है कि हॉस्पिटलाइज है कि कहाँ गई है नहीं गई है, कुछ नहीं देखने का है. वी आर वेरी गुड बैंकर. क्या करते हैं? बरोडियंस, प्राउड बरोडियंस. कैरेक्टर क्या है ये देख लीजिए आप. बोलिए तो एग्जाम्पल देके बताएंगे, तो सब चीज दिमाग में रहता है. Why this sort of indifference is growing towards our own colleagues? If fraud is committed in the branch, you do not take notice of the persons, the changes in the colleague's behavior. You do not take notice. Why? Person till yesterday was coming by ordinary Maruti, and today he has come on a car of 15 lakhs, a sofa-driven car. Where from the money has come? लॉटरीज में निकला होगा. वो भी नहीं आजकल आता है. लॉटरी कहाँ होता है आजकल? तो कम होता है लॉटरी, बहुत सारा कम स्टेट्स में लॉटरी होता है. लेकिन आपको ये दिखता नहीं है कि चेंज हैज कम इन दैट कलीग ऑफ माइंड. आपको ये दिखता ही नहीं है. व्हाई? कब दिखता है? जब वो चला गया ट्रांसफर होके और जेडआईडी आ गया, कोई कंप्लेन हो गया, निकला कि 1 करोड़ का फ्रॉड हो गया है. ऑनलाइन गेम, नया जनरेशन है बहुत. कब बाहर में तो देयर इज नो आउटसाइड फील्ड इज अवेलेबल फॉर प्लेइंग गेम.
So online game. कितना डैमेज कर रहा है, कैन यू बिलीव? सर्टेन illustrations have been given. One particular topic I have given, the unethical practices, that has been given to you in your folder. You can see that कि पंजाब एंड सिंध बैंक का एक केस था दिल्ली का. The boy committed, an officer, very junior officer, hardly 5-6 years of service, he committed a fraud of 56 lakhs. And that too in current account of a college, to the extent of 40 plus lakhs and some retail loans and all that. तो ये चीज अगर कोई नोटिस नहीं कर रहा है कि हमारा ये कलीग में चेंज है, his behavior has changed, his approach has changed, his interaction has changed, his जो उसका आने जाने वाला मिलने वाला that has changed, but do not take notice. Why? इंडिफरेंस होते होते कहाँ जा रहे हैं हम लोग, इसको नोटिस कीजिए. आप इसको नोटिस कीजिए. Very recently, name I will not take because the entire country I have to look after and be with my general secretary. दादा ये केस है, कैसे करेंगे, इसको कैसे करें. सपोज बहुत लाइव एग्जाम्पल देते हैं. A boy has committed straight way fraud commit किया उसने straight. तो जनरल सेक्रेटरी अप्रोच में कि दादा वो he wants to meet you. ठीक है बोलो मिलेगा, I'll be available. इतना तारीख को उसको बुलाओ मिलेंगे. Appear to be very innocent. I also am very innocent. कुछ मिला है क्या? हाँ सर एक चिट्ठी मिला है. दिखाओ दिखाओ क्या मिला है. How can I understand? By that time my John Secretary had already informed me कि दादा ऐसा है. तो देखा 4 months में different government accounts, big accounts में जितना तरह का manipulation करके he has defrauded the bank more than 20 lakhs straight way. और वो पूछा उससे कि क्या किया, मकान कौन बनाया? तो नहीं. तो भाभी जी को जेवर उवर दिया? नहीं. तो क्या क्या? सर वो ब्रोकर के चक्कर में. उसके बाद बोला देखे कि स्टेट में फ्रॉड है, तो मल्टी लेयरिंग फ्रॉड है, गवर्नमेंट अकाउंट से इस अकाउंट में ले जा रहा है, अकाउंट में सिग्नेचर चेंज कर दिया, जितना तरह का कर सकता है. बिकॉज इट वाज अ रूरल ब्रांच एंड illiteracy was there. Definitely looking to that, he has exploited the account holders in that fashion. कब का नौकरी है तुम्हारा? है डायरेक्ट ऑफिसर है कि तुम प्रोमोटिव ऑफिसर है, क्या है? तो डायरेक्ट ऑफिसर है. वेरी गुड. कितना साल सर्विस हुआ? 8 years. तो क्या सीखा अभी तक बैंक में? बैंक में कुछ सीखना चाहिए ना बैंक में कि क्या कौन सा चीज फ्रॉड कहलाता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. यू मस्ट हैव दैट सॉर्ट ऑफ सेंस. बाय 8 years यू मस्ट हैव ग्रोन. इस पार्ट में भी काम किए हुए था. एंड ही रेफर्ड टू द नेम ऑफ वन जोनल मैनेजर कि सर वो हमारे एजीएम थे. वाह बहुत अच्छा है. तो तुम तो ऐसा आदमी का नाम लिया कि हमारा चिंता और बढ़ा दिया तुम. हम तो जो जानते हैं कि दैट जेंटलमैन निहायत ईमानदार आदमी है, कर्तव्यनिष्ठ आदमी है, इज अ ऑनेस्ट पर्सन. आई नो हिम वेरी वेल. हाँ सर. तो क्या सीखा उससे तुम? सीखा क्या? माई इंटरेस्ट इज दैट व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम हिम. क्या सीखा तुमने? बिकॉज आई नो दैट मैन नेवर टीच यू ए बैड बैंकिंग. तुमको अनइथिकल बैंकिंग के लिए नहीं सिखाएगा कुछ तुमको, और तुम तो ये करके चले आए. नाउ सी द implications of it. चार्जशीट होगा, 100% मान के चलिए कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस होगा, 100% मान के चलिए. ऐसे केसेस में नाउ आप सोच सकते हैं कि किसी ऑफिसर का कैन कम डाउन टू दैट लेवल कि सर किसी तरह नौकरी बचा लीजिए. तो कुछ नहीं तो एक डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर कह सकता है आपको, उसका डिस्परेट नीड उसको कंपेल कर रहा है, जो उसका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कंपेल कर रहा है बोलने के लिए. सर अगर बच जाता किसी तरह, सब स्टाफ भी हो जाते, तो विथ अ लॉट ऑफ पेन्स आई एम शेयरिंग दिस. हमने स्टेट में पूछा कि तुमने 20 लाख किया,
एक ऑफिसर के लिए जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, कितना है आपका 2 इयर्स होगा मैक्सिमम, 2 इयर्स में आप 20 लाख अर्न करते हो, इससे ज़्यादा नहीं। मेजॉरिटी ऑफ यू, बारिंग इफ यू छोड़ दो, मेजॉरिटी ऑफ योर अर्निंग इज विथ ऑल बेनिफिट्स इज अराउंड 20 लाख। तुम 20 लाख के लिए जो तुम्हारा चले गया है दूसरे जगह, इट इज नॉट कम टू यू, और इसके लिए तुमने नौकरी गंवाओगे और तुम सड़क पर आओगे, बैंक एफआईआर करेगा तो जेल भी जाओगे। दिस इज हार्श रियलिटी। दूसरा एक ग्रे एरिया हो रहा है। जो ग्रे एरिया क्या है, एक जो आपका पर्सनल अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, यू हैव एसओडी अकाउंट बैंक में आपका है, एंड योर अकाउंट यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव ओनली योर सैलरी इनकम or interest income or any legitimate earning you have through dividend and earning, that you can show, that you can justify. नया एक ट्रेंड देख रहे हैं, एंड दैट टू इन जूनियर ऑफिसर्स। ये नया ट्रेंड है कि आपके पर्सनल अकाउंट में इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन है एंड यू हैव नो जस्टिफिकेशन। द मोमेंट ए लेटर इज गिवन टू यू, टुडे बैंक हैज इवॉल्व द सिस्टम, एंड वेरेवर बैंक फाइंड्स दैट कि आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसा, यू आर बीइंग गिवन ए लेटर कि प्लीज जस्टिफाई कि पैसा कहाँ से आया आपके पास, वेयर फ्रॉम यू मनी यू हैव गॉट, यू प्लीज आंसर। अनदर केस वेरी इंटरेस्टिंग, आपको जानना इसलिए चाहिए कि अनइथिकल कहाँ तक जा रहा है। इसी तरह वो जॉन सेक्रेटरी मेक्स ए कॉल कि दादा ये मिलना चाहता है अफसर, क्या हुआ, तो इसको अकाउंट में बहुत ज़्यादा इसका पैसा आ गया, इसीलिए इसको चिट्ठी मिला है, ही हैज़ गॉट द लेटर एंड ही वांट्स ए रिप्लाई कि आप उसको गाइड कीजिए रिप्लाई में। ठीक है, भेजो। बॉय appeared to be very innocent, बात किया उससे, क्या हो गया, तो earlier I was working in a rural branch and there ये this particular transactions are related to in that branch only. Today I have been transferred on interjonal to somewhere wealth, और वहाँ पर when I was posted there, तो 4 months में करीब almost 30 lakhs का ट्रांजेक्शन था उसके अकाउंट में, कैश ट्रांजेक्शन। तो I went deep into it, बताओ क्या बात है, कैसा पैसा है, वेयर फ्रॉम द मनी हैज कम, प्लीज टेल मी। उसका स्टोरी इज वेरी इनोसेंट, उसमें हम आई डू नॉट डाउट हिज इंटेंशन। सर हमारा एसओडी सैंक्शन हुआ इन द मंथ ऑफ अगस्त, और ये हमारे मैनेजर ने खुद सैंक्शन किया, तो उसको पता था कि हमारे एसओडी में 4 लाख है। बैंक का स्कीम आया, कौन सा स्कीम आया, OTS, one time settlement for crop loan. If you deposit 25%, then your entire loan will be waived। आपका 25% जमा करो, और मैनेजर ने उसको कॉन्फिडेंस में लिया, कॉन्फिडेंस में लेके उसको बोला तुम ऐसा करो, यू जो दिस इज द लिस्ट ऑफ बोरर्स, यू डिपॉजिट द मनी एंड आई विल सैंक्शन लोन टू देम फर्दर। क्रॉप लोन का भी KCC का था केसेस, आई फर्दर उसको सैंक्शन करेंगे एंड फ्रॉम दैट मनी आई विल पे यू बैक। सी द थिंग्स, हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। उसके अकाउंट से पैसा निकलता है, मनी इज डिपॉजिटेड इन द रेस्पेक्टिव लोन अकाउंट्स, सेम लोन्स आर सैंक्शन टू द सेम बोरर्स और देयर वाइफ्स, उसको किया एंड मनी कम्स टू हिज, कैश निकलता है, कैश आता है, एंड for 40 or some odd cases, the amount accumulates around 30 lakhs plus within a period of 4 months. तो काहे किया, क्यों किया, कुछ कारण तो होगा। सर बहुत NPA बढ़ा हुआ था, ब्रांच मैनेजर बोला सर, सो इनोसेंट अ बॉय, कि मैनेजर टोल्ड मी कि दैट ये बैंक का NPA बहुत बढ़ा हुआ है, घट जाएगा NPA, तुम हेल्प करो, और तुमको क्या है, यू आर नॉट इन लॉस। सर बाद में पता चला कि हम अनइथिकल काम कर रहे हैं, और उसके जवाब में आई डिड नॉट फाइंड अ सिंगल लाइन मेंशन्ड अबाउट द ब्रांच हेड। द सेम ब्रांच ऑन माई क्वारी ही वेंट ऑन आंसरिंग माई क्वारीज कि कहाँ कहाँ ब्रांच हेड का इन्वॉल्वमेंट है, बट सो फॉर रिप्लाई ही प्रिपेयर्ड देयर वाज नो सच अ बॉय, सच अ इनोसेंट बॉय आई शुड से। तो ये OTS किसने सैंक्शन किया, सर ब्रांच हेड ने।
पीएसआर क्या, किसने साइन किया? सर ब्रांच हेड ने। फ्रेश लोन किसने सैंक्शन किया? ब्रांच हेड ने। कहीं तुम लिखे नहीं हो। तो सारा तुम अपने जिम्मे ले लिया है, शिव जी, पूरा जहर तुम अपने पिएगा तो मरेगा कौन? तुम मरेगा कि वो मरेगा? हाउ, आप ये समझो कि एक इनोसेंट बॉय कैसे ट्रैप हो सकता है। इट्स एग्जाम्पल, उसको जवाब बनाया और आई विल प्लीड दैट केस बिकॉज मेरे साथ क्या है, इफ आई एम कन्विंस दिस बॉय इज ऑनेस्ट आई विल फाइट फॉर हिम। कोई भी लेवल होगा, जोनल हेड होगा, ऊपर जाना होगा, जाएंगे। हम कन्विंस हैं कि वो इनोसेंट है, उसको ट्रैप कर लिया और उसका कोई मालाफाइड नहीं है, 1 पैसे का मालाफाइड नहीं है। तो आज अभी जब लंच पे बैठे थे तो ये बात हो रही थी कि बोथ द केसेस ही साइटेड आवर ऑनरेबल ईडी कि जो अभी क्या हो रहा है, जो पनिशमेंट जिसको नहीं होना चाहिए उसको ज़्यादा पनिशमेंट हो रहा है और जिसको होना चाहिए उसको कम हो रहा है। अभी रिसेंटली एक सर्कुलर दिया जनरल सीजीएम ऑपरेशन ने, ये चीज़ को हाईलाइट ही उस सर्कुलर में, दिस हैज बीन हाईलाइटेड इन दैट सर्कुलर कि लेसर पनिशमेंट हो रहा है और ये ठीक नहीं है। डीए हैज बीन गाइडेड कि आप इस तरह से मत करो। तो जो केसेस जिस तरह के हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ethics part is getting very weak, including certain lady officers के अकाउंट में भी ये ट्रांजैक्शन दिखने को मिला। When I take stock of the situation, I see everything from every angle. इसमें स्केल 2 कितना है, 3 कितना है, 1 कितना है, 4 कितना है। I have to look at that way also. इसमें मेल कितना है, फीमेल कितना है। तो ये आप लोग ये सावधानी बरतिए कि दिस इज नॉट डस्टबिन। ये डस्टबिन नहीं है आपका कि आप कुछ भी उसमें कूड़ा डाल दो जाके। इथिकल पार्ट इतना कमजोर होगा ये समझ में नहीं आता है क्यों ऐसा हो रहा है। कोई भी आप लोग को जो बैंक सुविधा देती है वो कम है क्या? किसको कम पड़ रहा है जरा बताइए, जो इस तरह का जरूरत पड़ता है आप लोगों को करने के लिए। आपने रेंट लिया, लैंडलेडी लैंडलॉर्ड का आपने पैसा पे किया और वहां से आपका मम्मी के अकाउंट में, डैडी के अकाउंट में ट्रांसफर आता है। एक फ्रॉड करके कितना दिन और कितना अमाउंट आप अर्न कर सकते हो? 1 साल, 6 महीने, जब तक कोई नोटिस नहीं करता, टिल देन ओनली। तो अल्टीमेटली इट कम्स आउट कि ये मनी आपका कहाँ जा रहा है। आपने 10,000 लिया तो क्यों स्ट्रेट वे आपका 10,000 इज गोइंग ऑन द सेम डे बीइंग ट्रांसफर टू योर मदर्स अकाउंट, वाई? और अगर इस तरह के ट्रांजैक्शन में आप पार्टी हो, नॉट नोइंगली, अननोइंगली यू बिकम ए पार्टी। वाउचर आप, अभी हम लोग कहते हैं ना पेपरलेस बैंकिंग करते करते वाउचरलेस बैंकिंग हो गया। आपके पास इतना कम समय है कि आप 2 लाइन लिखना नहीं चाहते हो कि ये ट्रांजैक्शन, ये डेबिट, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है। यू डोंट हैव दैट मच टाइम ऑल्सो, यू हैव बिकम सो कैजुअल, so careless that you don't want to write in any detail about that transaction. Why? ये जितना आपको बोल रहे हैं, because association has started engaging officers, branch heads. We have designed a course, business with compliance and ethics. We are conducting the classes. A stage has come. But today, what I find personally, the role of trade union has undergone a sea change. Ultimate that टाइम ऑफ है ना, ठीक है, हम छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन इज दैट कि ये अभी जो बता रहे थे आपको कि जो बिजनेस विथ एथिक्स एंड कंप्लायंस जो बराबर हम लोग ये एम्फेसाइज कर रहे हैं, और ट्रेड यूनियन का रोल चेंज हो गया है। मोस्ट ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन ओनली नोइंग अबाउट योर ट्रांसफर्स, है ना। आजकल हम बोलते हैं कि जॉन सेक्रेटरी क्या बात है, आजकल दुकानदारी नहीं चल रहा है, चार्जशीट कम हो रहा है क्या,
कि ट्रांसफर का सीजन नहीं है? Members approach association only for two works now. You review yourself, introspect, whatever I'm telling is there is fact or not. In the transfer season, हमारा जोनल सेक्रेटरी फोन नहीं उठाएगा, तो उसको टाइम नहीं है, कहाँ से उठाएगा वो? तो बीबी से बात नहीं कर सकता, आपसे बात करेगा। दादा बहुत परेशान है दादा, क्या हो गया? इतना फोन आ रहा है कि सर मत पूछिए। अरे तभी तुम्हारा सीजन है, अभी तो फोन आएगा। तो बोला हुआ है कि फोन सबका उठाने का है। आप लोग भी जो कमिटी मेंबर हैं, नेवर अवॉइड द कॉल्स, नेवर अवॉइड द कॉल्स ऑफ मेंबर्स, otherwise this meant you are not owning the responsibility of a office bearer. Very clear. If you have own up the responsibility, you must pick up the call, you must respond the call. आपको नहीं पता है कि आपका मेंबर किस क्राइसिस में आपको कॉल कर रहा है। And here lies your responsibility बोल लीजिए, accountability बोल लीजिए, moral बोल लीजिए कि आपका moral ये अगर अलाउ करता है कि नहीं हम ऐसे उसको अनकेयर्ड जाने देंगे, it is not fair at all. तो हमको मिला है सिग्नल, आई शुड कंक्लूड। मेरा एक ही जो उद्देश्य है इस नेशनल फीमेल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का कि आप लोग एम्बेसडर बनिए एसोसिएशन का। जहाँ दिक्कत आए डायरेक्ट बात कर सकते हैं, किसी को कोई गाइडेंस आए, इसमें से बहुत सब मेरा पुराना दे नो मी वेरी वेल, जो होता है ना सब स्केल 1 में ज्वाइन किया था उस दिन से हम जानते हैं, इसमें से बहुत सारा बैठा हुआ है। तो कीप ऑन डूइंग दिस थिंग्स। एसोसिएशन आपका है, मेंबर आपका है, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस एसोसिएशन को बहुत स्ट्रांग बनाएं। और जब तक ईच वन ऑफ यू इज नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, जनरल सेक्रेटरी भी नहीं कर सकता। आपका पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जहाँ भी रहिए टच में रहिएगा। और अभी तो आजकल डिजिटल युग हो गया ना, वो पाधे साहब पूरा ग्रुप बनाए हुए हैं आप लोग का, ग्रुप बना नया फीमेल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का, हम देख रहे हैं कि ग्रुप बना है। हम तो इस सब में इलिटरेट आदमी है, दिमाग में बात करता है बस। तो सब चीज़ मॉनिटर होगा। हमने कहा ना कि देखेंगे हम कि अगले साल कितना लोग जो परीक्षा में नहीं बैठता था प्रमोशन में, ये मैडम लोग को सुन के कितना लोग इंस्पायर हुआ। So thank you all.